everyone. So welcome to Class 6 Science, and today in this video we are doing a very interesting chapter which is diversity in the living world. So in this chapter we'll understand about different plants and animals around us and how they are different from each other. So this is part 1 of the chapter where we'll be discussing about the varieties in plant kingdom. Plants में कितनी variety होती है? We'll be studying diversity in the world of plants. So let's begin. First, let's understand biodiversity. Okay, आप देखेंगे biodiversity is made up of two words. एक word है bio and second word is diversity. So bio means life and diversity means variety. That means variety in the living world. So biodiversity means variety in the living world. कितनी variety होती है? So, the variety of plants and animals found in a particular region is known as the biodiversity of the region. Here you see two pictures. पहली पिक्चर है एक डेजर्ट की. आप देखेंगे वहाँ पे बहुत कम प्लांट्स हैं. पाम ट्रीज हैं, बहुत फ्यू छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं. एनिमल्स भी बहुत कम सर्वाइव करते हैं. तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ज़्यादा है या कम है? Yes, यहाँ पे वैरायटी कम है. So it has low variety. So low variety means low biodiversity. Low variety, low biodiversity. Now see the second picture. ये है एक forest की picture. यहाँ पे आप देखेंगे it has many trees, many plants, many animals, many insects. It has everything in abundance. Okay, तो यहाँ पे क्या है? Variety ज़्यादा है. It has high variety. So high variety means high biodiversity. Okay, low variety, low biodiversity, high variety, high biodiversity. So diversity means variety. Biodiversity means variety in the living world. Next is importance of biodiversity. Why is biodiversity important for us? So you see organisms are interdependent on each other. सारे जो organism हैं वो एक दूसरे पे depend करते हैं. तो जितनी variety होगा उतना easy होगा सबके लिए survive करना, adjust करना. And it creates a well balanced system. जितनी variety हो ज़्यादा होगी तो well balanced system मिलेगा. Biodiversity इसलिए हमारे लिए बहुत important है. And what will happen? अगर थोड़े से भी organism, even loss of even a few organisms, it will affect the balance and harms the region. So हमें biodiversity एकदम protect करके रखनी चाहिए. It is very important for our survival. Next, let's understand classification. Classification क्या होता है? What is classification and why it is important? What is importance of classification? Classification, okay, means class. क्लास मीन्स एक जैसी चीज़ों को हम एक क्लास में रख देते हैं. सो दैट मीन्स ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर. एक ही ग्रुप में चीज़ों को डालना. ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स. कॉमन फीचर्स के बेसिस में हम उन्हें एक ग्रुप में डालते हैं. इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. Why is classification क्यों important है? Because it helps us understand things easily. We can study them easily and systematically. एक system हो जाता है, हमें ज़्यादा effort नहीं लगाना पड़ता पहले ढूंढने में चीज़ों को. अगर हम चीज़ों को classify करके एक group में रखेंगे तो आप उनको easily find कर सकते हैं. You won't be wasting time. So classification हमें easily और systematically study करने में help करता है. सी यहाँ पे सारे जो मसाले हैं दे आर ग्रुप्ड बाय टाइप. ये एक टाइप के हैं तो इन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया. हमने इसे क्लासीफाई कर दिया. दीज आर ऑल मसालास. नाउ दीज आर ग्रुप बाय शेप. जितने स्पून है, फोर्क है, नाइफ है, उनको शेप से हमने एक साथ ग्रुप कर दिया. सो जब हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, सपोज यू हैव टू फाइंड सम मसाला, सो वेयर यू विल यू गो? आप मसाला जहाँ पे रखे होते हैं, यू नो दैट इट इज केप्ट देयर, सो आप वहीं जाके निकालेंगे. सो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. एंड क्लासिफिकेशन helps us to study things easily and systematically. Now classification of living things. अब living things को भी हमने classify करा हुआ है. Although living things share some common properties, they differ in many ways. अब क्या है जो living things हैं उनकी बहुत सारी common property, इसलिए हम उन्हें living बोलते हैं. We separate them from non-living things. So although उनकी बहुत सारी common properties हैं, but they also differ in many ways. वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग भी होते हैं. Therefore, living things are classified into groups and subgroups. So living things को हम groups में classify करते हैं
And after classifying them into groups, we also classify them into subgroups. Groups को भी जो हम further divide करते हैं वो subgroups बन जाते हैं. So why we are doing this? Because it makes it easier to study plants and animals on the basis of their similarities and differences. इससे वो easy हो जाता है पढ़ना. Similarities, differences के basis में हम उन्हें group कर देते हैं and it becomes easier for us to study them. Next is classification of plants. How do we classify plants? Plants को हम कैसे classify करते हैं? Now plants grow all around us. Plants हमारे चारों तरफ grow कर रहे हैं. It is growing all around us. तो हम उसे कैसे classify कर सकते हैं? So they grow on land as well as in water. वो land में भी grow करते हैं, water में भी grow करते हैं. And there are more than 400,000 species of plants. Plants differ in stems, leaves, flowers and other features. Plant किस basis पे differ करते हैं, किस जगह पे वो grow कर रहे हैं, land पे कर रहे हैं या water पे कर रहे हैं. On the basis of their stems के basis में हम उन्हें classify कर सकते हैं. On the difference between their leaves, on basis of that we can classify. And flowers में flowering है या non flowering है, इस तरीके से या और other features को लेके हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में. वी कैन डिवाइड देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. सो फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग. फ्लावरिंग होंगे जिसमें फ्लावर लगेगा एंड नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर नहीं लगता. सो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. टू मेन ग्रुप्स हैं. Those main groups are flowering plants and non-flowering plants. Okay. So flowering plants क्या होते हैं? आप पहली पिक्चर में देखेंगे. So that bears flower. Example: rose, sunflower, mango. Rose, sunflower, mango. These are example of flowering plants. And non-flowering plants, they do not bear flowers. Example: ferns, mosses. अब हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्टेम. अब स्टेम के बेसिस पे कैसे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. सो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ देयर स्टेम. स्टेम कितनी बड़ी है, स्टेम कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसके बेसिस में भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स. Plants on the basis of stem are of 4 main types. Okay, you have to pay attention here. Herbs, shrubs, trees and creepers and climbers. Okay, herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. ये classification है based on stem. अब herbs क्या होते हैं? herbs को ढंग से पढ़ते हैं. herbs क्या होते हैं? पहली पिक्चर है that is of herbs. जो ऊपर जो पिक्चर आपको दिख रही है वो herbs की है. herbs क्या होते हैं? soft green stems होती हैं. इनकी बहुत ग्रीन स्टेम होती है, सॉफ्ट होती है, आप इसे अपने हाथ से प्लग कर सकते हैं. एंड दे आर स्मॉल प्लांट्स, यूजुअली लेस देन 1 मीटर इन हाइट. यूजुअली वो 1 मीटर से कम हाइट होती है. एग्जाम्पल: वीट, स्पिनच एंड इवन जो आप अपने किचन में यूज़ करते हैं लाइक मिंट यूज़ करते हैं, कोरिएंडर यूज़ करते हैं, आप हाथ से प्लग करके उसको निकाल लेते हैं ना, तो दोज आर हर्ब्स बिकॉज दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम एंड हाइट इज ऑल्सो वेरी लेस. दे आर usually less than 1 meter in height. Now this picture, second picture is of shrub. तो क्या है इसमें? They have hard woody stem. Shrubs के hard woody stem होते हैं. ये medium size के plant है, usually 1 to 3 meters in height. और इसके जो branches हैं वो base से ही निकलनी शुरू होती है. Okay, branches नीचे से ही ये branch out करना शुरू हो जाते हैं. Example: rose and hibiscus. Next is tree. Okay, based on stem, trees भी होते हैं. trees में क्या है? trees are big tall plants. they have strong thick woody stem जिसको हम trunk बोलते हैं. trees क्या है? big और tall plant है, इसकी height ज़्यादा है, इनकी stem कैसी है? strong है, thick है, and they can stand upright without support. you can see this picture of palm here. वो बहुत and they live for many years. वो बहुत years तक रहते हैं. And they stand upright. Example: जितने भी trees हैं big, you see mango tree, neem tree, banyan tree, coconut, etc. These are the example of trees.
नाउ सी क्रीपर्स, ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है ये क्रीपर्स, ये फर्स्ट वाली इज क्रीपर जो आपको मेलन दिख रहा है. क्रीपर्स का क्या होता है, क्रीपर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम. क्रीपर की जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, वो अपराइट नहीं स्टैंड कर सकते बिकॉज they have weak stem, they cannot stand upright, so they spread on the ground. वो ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं और यूजुअली इनके जो फ्रूट्स होते हैं दोज आर वेरी लार्ज एंड हैवी. मेलन्स लगते हैं उसमें, पम्पकिन्स लगते हैं. एग्जाम्पल्स आर पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन. दीज आर द एग्जाम्पल्स. आपको सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करके रखने हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनकी भी बहुत वीक स्टेम होती है और ये विथ सपोर्ट ये इट ग्रोज अपवर्ड. उसको सपोर्ट चाहिए होता है और सपोर्ट के साथ अपवर्ड ग्रो करते हैं. दे क्लाइम यूजिंग टेंड्रिल्स, हुक्स और स्टेम्स. इनकी हेल्प से वो क्लाइम कर जाते हैं. एंड दे ग्रो फास्टर व्हेन गिवन सपोर्ट. हम उनको सपोर्ट देते हैं तो वो फास्ट ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन. यू मस्ट हैव सीन दीज. जो हम उसे डंडी पे वी जस्ट एक स्टिक लगाते हैं, उसके अराउंड हम उन्हें सपोर्ट देते हैं तो इट क्लाइम्स अप. नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द रूट सिस्टम. अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन रूट सिस्टम में क्या होता है. सो रूट्स ऑफ प्लांट्स डिफर इन स्ट्रक्चर. ओके, प्लांट्स की रूट स्ट्रक्चर में डिफर करती है, कैसा शेप है उसका, उसमें वो डिफर करती है. अब हम उसमें वैरायटी पढ़ेंगे. सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट. टू मेन टाइप्स होती हैं. कौन सी, टैपरूट एंड फाइब्रस रूट. सो यू सी द पिक्चर हियर, जो नीचे ग्रो कर रही है पतली सी, ऐसे नीचे ग्रो कर रही है, दैट इज टैपरूट. और जो ऐसे ग्रो करती है दैट इज फाइब्रस रूट. अंडरस्टैंड वेरिएशंस इन द रूट सिस्टम. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट टैपरूट सिस्टम. सो टैपरूट में क्या होता है, देयर इज वन मेन रूट. एक मेन रूट होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक बीच से एक रूट जा रही है जो मेन रूट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट. नाउ स्मॉलर लेटरल सेकेंडरी रूट्स ग्रो फ्रॉम इट. अब आप देखेंगे साइडवेज एक प्राइमरी रूट है, उसके साइडवेज लेटरली कुछ रूट्स ग्रो कर रही है, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट. सो मेन रूट इज प्राइमरी रूट और साइडवेज जो ग्रो करती है दैट इज सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट्स. मेन रूट इज लॉन्ग एंड टेपरिंग. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बहुत लंबी और टेपरिंग होती है. टेपरिंग मीन्स बॉटम से ये नैरो होती जाती है, जैसे जैसे नीचे आती है इट स्टार्ट्स गेटिंग नैरो. एग्जाम्पल्स आर मस्टर्ड, बीन, कैरेट, रैडिश एंड टर्निप. यू मस्ट हैव सीन रैडिश भी ऐसे ही शेप की होती है, कैरेट भी ऐसे ही शेप की होती है, नीचे से टेपरिंग होती है. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट सिस्टम. अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, नो मेन रूट इज प्रेजेंट. कोई भी मेन रूट नहीं होती है. And there are, what you can see in the picture, many thin root. बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं जो स्टेम के बेस से ही ग्रो करती है. स्टेम के बेस से ही एक गुच्छा जैसे वो ग्रो करने लग जाता है. एंड रूट्स स्प्रेड आउट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल. रूट सॉइल के सरफेस से ही स्प्रेड आउट करना शुरू कर देते हैं. एग्जाम्पल्स आर व्हीट, राइस, ग्रास, मेज एक्सेट्रा. वेरिएशंस इन द वेनेशन ऑफ लीव्स. अब हम पढ़ेंगे लीफ वेनेशन ऑफ लीव्स के बेसिस पे हम कैसे प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड लीफ वेनेशन होता क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वीन्स क्या होती हैं. सो वीन्स क्या होती हैं, वो लाइंस या पाइप्स जैसे देख रहे हैं, छोटी छोटी लाइंस. ये लाइंस कैरी करती हैं वाटर, मिनरल, फूड प्लांट को प्रोवाइड करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं. सो ये काम होता है वीन्स का. व्हाट आर वीन्स, दीज आर द लाइंस दैट कैरी वाटर, minerals and food. Now you see एक thick central vein है, एक thick सी निकल रही है सेंटर से, that is called midrib. And arrangement of veins, यही veins का जो arrangement होता है उसको हम leaf venation बोलते हैं. So what is leaf venation? It is nothing but arrangement of veins in the leaf. सो उसके बेसिस में टू टाइप का वेनेशन होता है. लीफ वेनेशन आर ऑफ टू टाइप. अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. हियर यू सी टू पिक्चर्स. सो फर्स्ट पिक्चर में है पैरेलल वेनेशन. नाउ सी फर्स्ट पिक्चर केयरफुली. इसमें जो वीन्स हैं दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. आप देखोगे एक दूसरे के सीधे सीधे चल रही हैं वो. सो वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर. अगर पैरेलल वेनेशन है
तो रूट कैसी होगी? फाइब्रस. यू हैव टू रिमेंबर इफ वेनेशन इज पैरेलल मीन्स वीन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. सो जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी. एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस रूट का? मेज, ग्रास एंड वीट. अगर आप इसके लीव्स देखेंगे, मेज, ग्रास, वीट, क्योंकि ये फाइब्रस रूट है, आप इसके लीव्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें जो वेनेशन है वो पैरेलल है. नाउ सी सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर में जो वेनेशन है दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन. इसमें क्या है, जो वीन्स हैं वो नेट लाइक वीन्स हैं. वीन्स पैरेलल नहीं रन कर रही, वो सीधी सीधी लाइंस की तरह नहीं, वो जाली की तरह जिगजैग कहीं से भी मुड़ जा रही है, वो नेट की तरह फैली हुई है. सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट कैसी होगी? टैप रूट. लाइक बीन, कैरेट, तुलसी. अगर आप बीन, कैरेट, तुलसी इनके लीफ देखेंगे तो आप देखेंगे वेनेशन नेट की तरह है, वो फैली हुई है जाली की तरह. नाउ वेरिएशन इन नंबर ऑफ कॉटलिडेंस. अब कॉटलिडेंस के हिसाब से हम कैसे प्लांट को क्लासिफाई करते हैं? कॉटलिडेंस में वेरिएशन होता है, उस हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे प्लांट को? नाउ कॉटलिडेंस होता क्या है? कॉटलिडेंस आर द सीड लीव्स प्रेजेंट इन अ सीड. ये जो टेम्पररी सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं सीड के अंदर, जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट. अब आप पिक्चर में देख रहे हैं एक बेबी प्लांट है, तो इस बेबी प्लांट है, ये एम्ब्रियो है, इसको टेम्पररी जो न्यूट्रिशन मिलना है वो कौन प्रोवाइड करता है? कॉटलिडेंस. ये जो दो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहे हैं ये कॉटलिडेंस है. ये क्या करते हैं? ये टेम्परली बेबी प्लांट को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्प्राउट आउट हो जाए. एंड सीड्स के क्या होते हैं? या तो एक कॉटलिडन होगा या 2 कॉटलिडेंस होगा. एंड द नंबर ऑफ कॉटलिडेंस ऑल्सो हेल्प इन क्लासिफाइंग प्लांट्स. कॉटलिडन के बेसिस में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं. सो लेट्स सी दिस डाइकॉटलिडेंस. डाइकॉटलिडेंस जिसमें 2 डाइकॉटलिडेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स. सो सीड हैज, इसमें सीड के 2 कॉटलिडेंस होंगे, लाइक यू सी इन द पिक्चर 2 कॉटलिडेंस हैं. इसमें एग्जाम्पल बीन है इसका एग्जाम्पल. एंड हियर इफ द प्लांट इज डाइकॉट तो वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट, और रूट होगी टैप रूट सिस्टम. नाउ सी मोनोकॉटलिडेंस. मोनोकॉटलिडेंस को हम कहते हैं मोनोकॉट्स. इसमें सिर्फ एक कॉटलिडन होता है. सीड हैज ओनली 1 कॉटलिडन. एग्जाम्पल इज मेज. ठीक है. नाउ इसका वेनेशन कैसे होगा? पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. आपको याद रखना है, अगर डाइकॉट है उसके 2 कॉटलिडन है, रेटिकुलेट वेनेशन है और टैप रूट सिस्टम है. अगर मोनोकॉट है मीन्स सीड में 1 कॉटलिडन है, पैरेलल वेनेशन है और फाइब्रस रूट सिस्टम है.